everyone, I'm Ragini and I welcome you all to my channel. So, few days ago on 14th June 2020, we came across the news of demise of Sushant Singh Rajput, who was an emerging superstar of Bollywood. He was an intelligent guy who had almost everything what one desires to have in their life. He had a good name, fame, wealth, wisdom, and whatnot. But still, he committed suicide. What made him do so? While we are getting so many of the information around, the main reason is said to be depression. Why was he depressed? And is depression so injurious? It's high time we are ignoring this topic. Depression is making the condition of our country empathetic, and we need to talk. Yes, we need to talk. Moving forward. So, here are some global facts and figures related to suicides. The source is World Health Organization. So close to 8 lakh people die by suicide every year. That brings to estimation of one death every 40 seconds. And for every suicide, there are more than 20 suicide attempts. Suicide is the second leading cause of death among 15 to 29 years old. And 79% of suicides occur in low and middle income countries, and rest 21 happens in high income countries. Well, there is also a good global fact that suicides are preventable. Suicide is the practice of killing oneself, and one should always neglect even the thought of suicide. No matter what is the problem, no matter what is at stake, but even the thought of suicide should never ever enter your brain. But in past, there are so many of the people who have actually committed suicide. What made them do so? There are few common causes of suicide. Those are मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके का दिक्कत या परेशानी लोगों को इस हद तक मजबूर कर सकता है कि वे सुसाइड कर लें. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, किसी के साथ भेदभाव या उसे परेशान करना किसी की जान ले सकता है. एंड दिस इज परहैप्स द रीजन बिहाइंड सुशांत सिंह सुसाइड ऑल्सो. According to sources, according to media, this is the reason behind him committing suicide. Next reason could be poverty, garibi. We have seen so many of the farmers who has committed suicide only because of poverty. नेक्स्ट एडिक्शन, किसी भी चीज़ की लत अगर हमें हो जाती है और वो लत पूरा नहीं हो पाता है तो उस फ्रस्ट्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं. नेक्स्ट, लोनलीनेस, अकेलापन. मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और अगर कभी कभी जब वो समाज से कट जाता है, दूर हो जाता है, अकेला रहने लगता है, तो उस लोनलीनेस की वजह से वो सुसाइड कर सकता है. नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड इज डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्सन फील्स लो, feels sad for extremely long period of time. When he doesn't get any happiness in doing even his routine work, what he used to do before. What is depression? So according to few doctors, depression is all because of change in hormones. But let's not go in medical field, and let's talk about depression in general terms. So depression is a constant feeling of sadness or low mood. Everyone feels sad or down at times, but clinical depression is different. It is constantly present and interferes with your everyday activities. Depression can be mild, moderate, or severe, depending on how much it affects your life. And you can experience different levels of depression at different times. If you are depressed, you often lose pleasure in things that were once enjoyable. You may give up usual activities such as hobbies and lose interest in seeing friends and family. Some people even feel that life is no longer worth living and have thoughts of suicide. So अगर आप लंबे समय तक तनाव में हो, स्ट्रेस्ड हो, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो ये डिप्रेशन हो सकता है.
आपको किसी चीज़ में, किसी काम में जो आपकी कभी हॉबीज़ हुआ करते थे, अब आपको करना अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि अब आपके कोई सपने नहीं हैं, ना ही आपको फ्रेंड्स, फैमिली, उन लोग से मिलना भी अच्छा नहीं लगता है। और डिप्रेशन माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अगर आपका डिप्रेशन माइल्ड है तो वो बातों से कम्युनिकेट करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक हो सकता है। बट अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक इंसान अपने लाइफ में कई बार डिप्रेस्ड हो सकता है, अलग अलग तरीके से। कभी छोटा बहुत स्ट्रेस है, तो कभी लंबे समय तक। सो दिस इज ऑल डिप्रेशन। कॉजेज डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डिप्रेशन कैन एमर्ज आउट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, कांस्टेंट स्ट्रेस। अगर आपको किसी चीज़ का तनाव है, स्ट्रेस है एक लंबे समय तक, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन। फेलियर, ब्रेकडाउन। अगर आपको असफलता मिलती है, तो बहुत लोग होते हैं जो फेलियर से डील नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अबंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करके रखता है और आपको वो डर लगता है कि आप वो उम्मीद पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उनका सारा जो ड्रीम्स है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे, तो उस स्ट्रेस की वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हो। एंड लास्टली, ओवर थिंकिंग। अगर आप कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो और नेगेटिवली आप उसके बारे में सोचते हो, उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ख़राब हो जाएगा सब, कैसे होगा, और बहुत फालतू का टेंशन लेते हो, तो वो ओवर थिंक की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। How can I understand if I'm depressed or not? So this is again a very important question कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम डिप्रेस्ड हैं या everything is normal. So there are few signs of depression, that is low mood all the time for at least 2 weeks. अगर आपको लगातार कम से कम 2 हफ्तों तक अगर आपका मूड बहुत ही लो रह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज़, कोई काम करना, ठीक है, यू डोंट नो द रीज़न वाई, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप पड़े हुए एक जगह पे, नो हॉबीज़, नथिंग टू डू, तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन एंड यू शुड कंसिडर इट। नेक्स्ट, नेगेटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ एंड द फ्यूचर। तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में या खुद के बारे में बहुत ही नेगेटिव से ख्याल आ रहे हैं कि नहीं होगा हमसे, या आई मे फेल। आपके कुछ एम्बिशन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि अब सब बस खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा हमसे। तो अगर आपको ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं तो आप इसे कंसिडर करो, ओके, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। Not being able to take pleasure in routine things that you have previously enjoyed, such as eating, watching TV or talking to friends. तो आपको कुछ काम बहुत ही पसंद था पहले, जैसे कि आपको खाना पसंद था, आपको टीवी देखना बहुत पसंद था और आपको अपनी दोस्तों से बात करना बहुत पसंद था, लेकिन अचानक से क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आपको कभी कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता था, अब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे कंसिडर करिए, ये एक डिप्रेशन का लक्षण है, ठीक है। दैट सडनली ऐसा चेंजेस आया, what is going inside your brain, this is all game of your brain. नेक्स्ट, थॉट्स ऑफ सुसाइड। तो अगर आपके दिमाग में सुसाइड तक के थॉट्स आने लगे, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी रॉन्ग विथ यू, समथिंग इज नॉट गुड विथ यू इन योर माइंड। कुछ चीज़ है जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है और उसके लिए आपको उस स्ट्रेस से डील करना होगा। आप खुद को कंसिडर कीजिए दैट येस, यू नीड ट्रीटमेंट, यू आर डिप्रेस्ड। सो आप उसके लिए अलग अलग थेरेपी ले सकते हो, दैट विल डिस्कस फर्दर। हाउ इज डिप्रेशन ट्रीटेड? तो डिप्रेशन कैसे ट्रीट किया जा सकता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू नो, बिकॉज डिप्रेशन इज अ रियल टाइम प्रॉब्लम एंड मेनी ऑफ द पीपल अराउंड अस आर सफरिंग विद दिस थिंग। तो इसके साथ कैसे डील करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
सेल्फ मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से खुद को मैनेज करके हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं. And how can we do self management? We can exercise, eat healthy, taking good sleep, giving up smoking, distance from problem, and minimizing stress. तो ये बेसिकली अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक चीज़ है कि अगर आप एक हेल्दी जीवन जीते हो, अगर आप अपने रूटीन को बदलते हो, जीवन शैली को बदलते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, आप अच्छे से नींद भी ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान होगा कि हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है और एक फिटनेस की ओर आपका रुझान हो जाएगा. और अगर आप फिटनेस की ओर झुकोगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है आप उससे दूर होगे, और अगर आप प्रॉब्लम से दूर होगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा. और इसी के साथ आपको जितने भी गलत आदतें हैं जैसे कि गिविंग अप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और व्हाट्सोएवर, तो आप ये क्या करोगे, आप उसे छोड़ दोगे, स्मोकिंग करना आप छोड़ दोगे. इस तरीके से आपका जो है रूटीन वो बेहतर हो जाएगा और आप खुद को मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से और आप खुद को डिप्रेशन से निकाल सकते हो. सो दिस इज मोर फ्रूटफुल और बेनिफिशियल इन माइल्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन. अगर आपके केसेस माइल्ड हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट की हेल्प से आप डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हो. नेक्स्ट इज टॉकिंग थेरेपी, बात करके. काउंसलिंग, काउंसलिंग मीन्स अगर आप किसी मास्टर जो बहुत नॉलेज रखते हैं इस विषय के बारे में, अगर आप उनसे बात करते हो अपने प्रॉब्लम के बारे में खुल के, वो आपको एक सही गाइडेंस देंगे और इस तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम का, जो भी आप प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा और आपकी डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. फैमिली थेरेपी, अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड हो तो वहाँ सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक फैमिली निभाती है. फैमिली को आपस में साथ में बैठकर उस बंदे को समझाना चाहिए दैट नॉट टू वरी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू कैन टॉक विथ अस विदाउट एनी स्ट्रेस. आप बात करो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी होगी. अगर फैमिली साथ में बैठी हो तो जो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. एंड यू नो दिस इज़ अ फैक्ट दैट फैमिली अगर आपके साथ है तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सो फैमिली, दे शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं दैट वी आर डिप्रेस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस, एंड व्हाट पेरेंट्स डू, जस्ट इग्नोर इट. पागल ऐसा बहाने कर रहा है. बट हर बार वो बहाना नहीं कर रहा बच्चा. कभी कभी ज़रूरत है कि आप उसके साथ बैठो, समझो उसको. ही नीड्स यू. सो फैमिली थेरेपी इज़ वेरी फ्रूटफुल. ग्रुप थेरेपी, इट कैन बी फ्रेंड्स ग्रुप, और ऑब्वियसली ग्रुप नोन लोगों का होना चाहिए जो कि आपको समझे. ऐसे लोग नहीं जो कि आपको नहीं समझ रहे. अगर आपको लोग समझ नहीं रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम का क्या ही सोल्यूशन देंगे. नेक्स्ट इज मेडिकेशन. आप डिप्रेशन अगर सीवियर है तो उस केस में मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. हमें चुप नहीं रहना चाहिए बिकॉज डिप्रेशन का एंड रिजल्ट बहुत ही ख़राब होता है. तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो खुद के अंदर, खुद के लिए या दूसरों के लिए, आपको लगता है कि किसी के आ, काम करने के तरीके में, बिहेव करने में थोड़ा डिफरेंस है, अगर आपको वो चीज़ हर्ट हो रहा है, फील हो रहा है, देन यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ हिम हर. यू मस्ट टेक देम टू डॉक्टर, काउंसलर, जो समझेगा उस प्रॉब्लम को, जो उसमें मास्टर होते हैं. वो एक अच्छा सा सोल्यूशन निकालेंगे, वट एवर ही नीड. ओके, thank you everyone for watching this video. Well, I feel it was very important to talk about this topic. क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है. कुछ लोग तो अज्ञानता में डिप्रेशन को पागलपन तक कह देते हैं, लेकिन वो पागलपन नहीं होता. डिप्रेशन किसी भी उम्र वालों को हो सकता है और जीवन में कभी भी हो सकता है. तो ज़रूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं. डिप्रेशन इज रियल एंड इट मस्ट बी क्योर्ड. Help others instead of making their fun. You are lucky if all is good with you. तो अगर आपके साथ सब अच्छा है तो आप लकी हैं, लेकिन जिसके साथ सब अच्छा नहीं है, जो डिप्रेशन में है, आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते. आप उनसे बातें करो. बिकॉज मेनी टाइम्स जस्ट अ कम्युनिकेशन कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. तो बहुत बार सिर्फ बात करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देन इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने ईगो को पीछे छोड़ें और बात करें.
And for everyone who is in depression, please speak up before you give up. तो बोलो, बातें करो, जिससे आपको जिस पर भी ट्रस्ट हो आप उनसे बातें करो, बट यू शुड टॉक. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए. अपने आप को प्रॉब्लम से डिस्टेंस करो, दूर हो जाओ प्रॉब्लम से. दिमाग को डाइवर्ट करो, कोशिश करो. बहुत लोग हैं जो आपका मदद करना चाहते हैं और बहुत लोगों के लिए आप मैटर करते हो, तो ये चीज़ को समझो. इफ़ यू डोंट find someone around you, talk to experts. There are people who are there for helping all those who are in need. You can talk to them. And I got inspiration for making this video on this topic after demise of Sushant Singh Rajput. He was an amazing star. He will be remembered always. खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी जाना. वो कुछ खामोशी में कह रहा था, वो चुपचाप काफ़ी कुछ सह रहा था. वो आखिर खुद अकेले रोक पाता भी कैसे, उसके सपनों का महल ढह रहा था. उसे पता था सब तमाशबीन हैं, कुछ करेंगे नहीं, बता के भी क्या फ़ायदा. शोर बहुत करता है ये शहर भीड़ भाड़ वाला, इसलिए वो खुद चुप रह रहा था. वो कुछ खामोशी में कह रहा था, वो सब कुछ चुपचाप सह रहा था.